Thank you very much. I must thank Bipasa ji and Meenakshi ji to have invited me for this, and Mr. Malakar. I think what I'm going to do is certain things which Bipasa ji wanted me to address, and then some things which I want to add on my own. So, to begin with, what she says is perfectly right. I was working in neurology department in AIMS in 80s. So 86 when I joined as faculty there was no treatment available for MS. So what we used to do is we used to make a diagnosis, and my then professor Dr. G.K. Ahuja was very interested in this because he was trained under Schumacher. Schumacher was the first person to develop diagnostic criteria for MS. So he was trained under him in US. He was very keenly interested in the topic, but so he will go into detail, make a diagnosis. We will also make a diagnosis. We will all agree, and then nothing. If you contrast that to today, 23 disease-modifying drugs are already approved by US FDA. So हम बहुत दूर बहुत आगे बढ़ चुके हैं. And now people are talking about how to develop or arrive at cure of MS. And एक लेसन जो लोगों ने सीखा है वो है कि there are some very highly effective treatment, there are some moderately effective treatment. So we always started with a low efficacy drug, mainly because less side effect, less cost, and so on, and then gradually escalated if needed. उसको अब लोग चेंज करना चाह रहे हैं. वो थिंकिंग इज चेंजिंग नाउ, सेइंग कि आप जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है कि स्ट्रॉन्ग दवा शुरू में ही दे देते हैं, विच इज कॉल्ड इंडक्शन थेरेपी. इंडक्शन देने के बाद मेंटेन करते हैं उसको सारे कैंसर सेल्स को क्लीन करके फिर आगे ना बढ़े उसके लिए मेंटेनेंस डोज देते रहते हैं. तो नाउ पीपल आर थिंकिंग कि ये एमएस में क्यों नहीं कर सकते कि शुरू में ही हार्ड हिट करो, स्ट्रॉन्ग दवा दो, सारे सेल्स को जो है वो सप्रेस या क्लियर कर दो, एंड देन मेंटेन विथ लो एफिकेसी और लेस इफेक्टिव ड्रग. और जरूरत ही नहीं होगी ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग की. एक बार आपने शुरू में ही काफ़ी ज़बरदस्त अटैक करके और उनको सबको सप्रेस कर दिया तो हल्के फुल्के ड्रग से चलता रहेगा. उसको कहते हैं वही सेम इंडक्शन फॉलोड बाय मेंटेनेंस रेजिम. तो ये थिंकिंग अभी इसलिए आई है क्योंकि पहले उतना इफेक्टिव ड्रग था भी नहीं, अब चूंकि अवेलेबल है तो ये इसकी चर्चा आजकल हो रही है. इनफैक्ट 2 स्टडीज हो रही हैं जो कंपेयर कर रही हैं दोनों पॉलिसी को, इंडक्शन फॉलोड बाय मेंटेनेंस एंड स्टार्टिंग विथ लो एफिकेसी ड्रग एंड देन एस्केलेशन. सो एस्केलेशन एक है और एक इंडक्शन फॉलोड बाय मेंटेनेंस है. ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें पेशेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट है. सो that is something which is very much in the offing, and you will soon hear whether people benefit more by one policy versus another policy. That will be perhaps known in a few years' time, 1 or 2 years' time. But we have reached quite far in the treatment of MS, from no treatment to 23 disease modifying treatment. Now we are talking about curing it. उस context में I must tell you that one I think question which I keep raising in every forum is medicines तो नए नए आ रहे हैं और बड़े इफेक्टिव मेडिसिन भी आ रहे हैं, लेकिन कॉस्ट उनका इतना ज़्यादा है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड. So what is the
solution to this. इसके लिए there is a multiple sclerosis international federation. उसमें I am also a member of the research wing. Actually ये रेणुका के टाइम में उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया था, तब से मैं मेंबर हूँ उनके रिसर्च टीम में, और वो टीम बराबर सोचते रहती है हाउ टू ब्रिंग एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द ड्रग्स. उसके लिए गुड न्यूज इज वी हैड प्रपोज टू WHO कि कम से कम कुछ दवाइयाँ जो है आप एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में डाल दो, so every government will make it available to people, at least they will subsidize or something. So that has been achieved. Rituximab and teriflunomide ये दोनों essential drugs में आ गया है, WHO ने उसको include कर लिया है, and they are now obviously informing the governments कि ये कम से कम आप widely available करो for general public. So एक रास्ता तो ये है. दूसरा रास्ता है जो कंपनीज ही करती हैं, वो है कि जब पेटेंट एक्सपायर कर जाता है मेडिसिन का तो जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं. नाउ पीपल हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट दैट कि जेनरिक मेडिसिन इफेक्टिव है नहीं है, लेना जस्टिफाइड है या वाइज है नहीं है. सो आई शुड टेल यू बिकॉज आई हैड a privilege to sit in those committees in Drug Controller General of India's office, CDSCO ऑफिस बोलते हैं उसको. उसमें कंपनीज आती हैं, प्रेजेंटेशन करती हैं कि हमने ये जेनरिक दवा लाया है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसका अप्रूवल दे दीजिए. यूजुअली ये दवाइयाँ होती है जो ऑलरेडी 10 साल से ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में और या वेस्टर्न कंट्रीज में चल रही है. उसका पेटेंट एक्सपायर कर गया तो हमारी कंपनियां बहुत स्मार्ट हैं, वो तुरंत ही उसका जेनरिक वर्जन बना करके और प्रपोज करती हैं कि हमें परमिशन दो, हम जेनरिक वर्जन बेचेंगे. तो आपको पता है कि टेरिफ्लोनामाइड का तो फ्लड सा आ गया है, सभी कंपनी जो है वो जेनरिक बना रही है. अब नेटलिजुमैब का भी एक जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक वर्जन आ गया है. तो ये क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि जेनरिक वर्जन इफेक्टिव है कि नहीं. तो जब हम कमेटी में बैठते हैं और देखते थे तो ये क्वेश्चन दिमाग में रहता था कि ये सब स्टैंडर्ड ना हो. स्टैंडर्ड हो उसके लिए उसकी जितनी भी स्टडीज हैं वो ऑब्वियसली बड़े बड़े, जिस तरह से आपने ये सारे ड्रग अप्रूवल के लिए बड़ी ट्रायल्स होती हैं सैकड़ों मरीजों पे, उस तरह का तो नहीं कोई कंपनी करता, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है. जस्ट एक एग्जांपल के लिए आप बताते हैं कि हमें हमारा कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड एक USA में है, वो बता रहा था कि एक पेशेंट हम एनरोल करते हैं तो हमको $5,000 मिलता है, हमको मतलब इंस्टीट्यूशन को. तो एक पेशेंट के लिए अगर कंपनी को $5,000 देना है तो आप समझ सकते हैं कि 600, 800, 1200 ये सब पेशेंट्स करने के लिए कितने पैसे खर्च करने होते हैं. उस तरह की स्टडी करके हमारी कंपनियां नहीं लाती हैं. ओब्वियसली वो इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो क्या करती हैं, कहती हैं कि ये दवा हमने दिया कुछ वॉलंटियर्स को और अपनी दवा दी जेनरिक, और दोनों का ब्लड में देखा कि लेवल कैसा है, किस रेट से बढ़ा, किस रेट से डाउन हुआ, सेल्स की स्टडी की, सेल्स कितने कम हुए, कितना इफेक्ट हुआ. तो ये वॉलंटियर्स पे स्टडी करके और कभी कभी स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स में करके लाते हैं. हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जो इनोवेटर ड्रग बोलते हैं, जो कंपनी शुरू में बनाई थी, इनोवेटर ड्रग जैसे टाइसेब्री है और हमने एक जेनरिक बनाया, वो दोनों की प्रॉपर्टी कंपेयर करके देख ली. फिर कमेटी एटलीस्ट 6-7 पीपल आर देयर, वो सारा देखने के बाद कुछ और सजेस्ट करती है, नहीं ये करके लाओ, ये करके लाओ, इसके बाद एक बार और प्रेजेंटेशन करो. तो ये वो सारी चीज़ें जो है टॉक्सिसिटी स्टडी, कभी एनिमल में स्टडी करनी होती है, ये सब करके वो प्रेजेंट करते हैं. तो आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस उसको अप्रूव किया जाता है. इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर अविश्वास करना ठीक नहीं है. मैं कॉशियसली बोलना चाहता हूँ इसलिए कि हम लोग जिसको अप्रूव करते हैं उसका भी डुप्लीकेट यहाँ इंडिया में बन जाता है. इंडिया में बहुत तेज हैं लोग, इसलिए
अच्छा। अच्छा, सो ये थोड़ा सा हमारे कंट्री में बड़ा मुश्किल होता है डिफरेंशिएट करना कि कौन रियल है कौन डुप्लीकेट है। दैट प्रॉब्लम वी ऑल हैव टू फेस। लेकिन ये जब यूएसए में जाते हैं, यूएसए में भी जेनरिक मेडिसिन बेचते हैं हमारी कंपनियां, खास करके कैंसर के फील्ड में बहुत आगे बढ़ गए हैं। और यूएस एफडीए भी एटलीस्ट 40-50 मेडिसिन जेनरिक ऑफन कमिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज उसको अप्रूव कर दिया है। ये यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी और भी ज़्यादा करीब 80-90 मेडिसिन उन्होंने अप्रूव कर दिया है जो जेनरिक है, क्योंकि कॉस्ट इशू से वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम तो हम स्ट्रगल कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि इतना एक्सपेंसिव मेडिसिन कहाँ से देंगे। अब जैसे आपको पता ही है, LM-TUGIMAB अगर देना है लोगों को तो वो उनके डॉलर के टर्म्स में 2 करोड़ रुपए के लगभग है, तो वो भी नहीं दे सकते। उसी तरह से और भी कंडीशंस में ऐसा होता है। तो ये आप ये समझिए कि अगर अनलेस देर इज डुप्लीकेट वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड कंपनी जेनरिक बना रही है और वो आपको अप्रूव्ड है हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से, तो उसकी एफिकेसी पे विश्वास कर सकते हैं, ये हमारा कहना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोगों इंडिया में तो नहीं किया, कहा है लोगों ने, बाहर में लोगों ने कहा कि ठीक है जेनरिक एक्सेप्ट करेंगे, पेशेंट्स पे स्टडी करके लाओ। तो एमएस के फील्ड में नहीं हुआ है, कैंसर के फील्ड में 480 पेशेंट्स 500 पेशेंट्स में कंपेयर करके दोनों को, जेनरिक वर्सन और इनोवेटर कंपाउंड दोनों को कंपेयर करके डाटा प्रेजेंट करके और अप्रूवल लिया है लोगों। इसलिए उसका भी प्रोसेस है, और अभी और भी प्रोसेस टाइट कर दिया है यूएस एफडीए ने। यूजुअली हमारे जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो यूएस में जो भी चीज़ें होती है ना उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये क्वेश्चन विपाशा जी का था कि जेनरिक मेडिसिन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो बहुत ज़्यादा उसमें स्टैंडर्ड कंपनी का है, तो अविश्वास या कहिए कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना रखिए, क्योंकि कॉस्ट का बहुत डिफरेंस होता है, आपने देखा ही होगा, सब जानते ही होंगे। तो ये एक इशू पे बात करना जरूरी था। दूसरा इशू जो है वो है फटीग इशू पे बात करने के लिए विपाशा जी ने कहा था कि उस पर थोड़ी देर बातचीत करें। तो दिस इज ट्रू कि अबाउट 80% एमएस पेशेंट्स को कभी न कभी फटीग का एक्सपीरियंस होता है, एंड दिस इज ए मेजर प्रॉब्लम इन पेशेंट्स विथ एमएस। सबसे पहले उसमें जो क्वेश्चन हम लोगों के डॉक्टर के माइंड में होता है वो ये है कि इज दिस प्राइमरी फटीग या इट इज बिकॉज ऑफ सम अदर कंडीशन। प्राइमरी फटीग मीन्स वाकई में फटीग इज ए प्रॉब्लम। दूसरा होता है जो कि कुछ और चीज चल रही है, उसके चलते फटीग एक सिम्टम के रूप में आया है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, और कहीं इन्फेक्शन है, वो बहुत कहिए लो लेवल पे इन्फेक्शन है, फीवर नहीं हो रहा है लेकिन इन्फेक्शन है, और उसके चलते पेशेंट को फटीग महसूस हो रहा है। दूसरा जो बहुत कॉमन चीज है वो है कि नेचुरली जब क्रोनिक बीमारी होती है तो आदमी उसके बारे में सोचता रहता है, सोचते सोचते कभी कभी जो है सोच में उतार चढ़ाव होता है, कभी उस दौरान नेगेटिव बातें भी माइंड में आने लगती है, और कभी कभी इस लेवल तक आने लगती हैं कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम है, जो जिसको मैं बराबर कहता हूं कि डिप्रेशन आप यूं ना सोचिए कि दिस इज समथिंग विच यू हैव क्रिएटेड, दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन in which chemistry of the brain gets changed. After all, whole body जो है जिसे बोलते हैं ना कि ये पंच तत्व से बना हुआ है, तो ये बेसिकली केमिस्ट्री ही तो है। पंच तत्व आप जो केमिस्ट्री पढ़े हैं वो एलिमेंट्स में तत्व पढ़ते होंगे ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो हमारी पूरी बॉडी एलिमेंट्स और कंपाउंड की बनी हुई है, तो सारा कुछ जो है वो केमिस्ट्री से चलता है। एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। ब्रेन में
न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरॉन्स एक दूसरे से मैसेज भेज रहे हैं। ये एमएस होने पर मेन प्रॉब्लम क्या होती है? मेन प्रॉब्लम होती है कि जो वायर्स हैं, जो कंडक्टिंग सिस्टम है, वो हमारा डिसफंक्शन करने लगता है। सो जैसे जो हम देख रहे हैं उसका मैसेज जाना चाहिए ब्रेन को, वो मैसेज ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। वो ट्रांसमिशन मैसेज का क्यों नहीं होता? ट्रांसमिशन मैसेज का इसलिए नहीं होता कि जो वायर्स जो हैं वो सारे जो हैं वो एक तरह से डिन्यूडेड हो जाते हैं और उनके ऊपर कवरिंग जो है हट जाती है। वो कवरिंग हट जाती है तो काम नहीं करेगा। जैसे आपके घर में भी केबल है, उसमें अगर डैमेज हो गया, 2 वायर टच गए तो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से वो प्रॉब्लम हमारी केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन जो होता है केमिस्ट्री से होता है। सारा कुछ एक न्यूरॉन दूसरे से जो टॉक करता है वो केमिकल्स के थ्रू करता है, क्योंकि कोई वॉइस तो है नहीं न्यूरॉन्स में। तो ये केमिस्ट्री चेंज हो जाने से ये आपकी थिंकिंग में नेगेटिव होने लगती है, और इसकी स्टडी करके लोगों ने उस केमिस्ट्री को फिर से वापस नॉर्मल लाने के लिए दवाइयाँ दी है, दवाइयाँ देते हैं, और बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ उस फील्ड में भी आ गई हैं। तो आप अगर ऐसा कभी होता है तो वही कारण हो जाता है फटीग का। आपको फटीग महसूस हो रहा है लेकिन अंडरलाइन डिप्रेशन है, इसलिए डॉक्टर के पास जाएं तो खुल करके बताएं। होता क्या है कि 1 मिनट 2 मिनट टाइम रहता है डॉक्टर के पास, उसमें मेन चीजें बात की हमने कि हाँ हमारा जो है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने जल्दी से दवा लिखी, वो बाहर चले गए, और जो मेन बात जो कहना चाहते थे वो बोल ही नहीं पाए। तो इसलिए एक चीज हमें जो फोर्टिस में अच्छा लगता है कि आपको टाइम है बात करने का, इसलिए ठीक है। सो यू कैन टॉक टू द पेशेंट, उनके क्या चल रहा है माइंड में आप रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, उनको भी बोलने का समय मिलता है। यहाँ तक कि कभी कभी मैं कहता हूँ कि अच्छा आपसे मैं अकेले बात करूंगा, आप लोग जो साथ में आए हैं वो बाहर चले जाइए, क्योंकि खुल करके बताएं तो अब सेक्सुअलिटी के बारे में, पोटेंसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता ना, जब तक कि फ्री एनवायरनमेंट नहीं हो। ये सब तो कभी हम बात ही नहीं करते थे। तो ये चीजें जो है आप खुल करके बताइए। कभी कभी फटीग का कारण डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन ट्रीट हो जाएगा, फटीग ठीक हो जाएगा। इसलिए ये सेकेंडरी कॉजेज जो है, जरूर कहीं इन्फेक्शन हो उसके बारे में जरूर बताइए, डिप्रेशन के बारे में बताइए, और कोई बात जो अनरिलेटेड टू एमएस है उसको भी बता सकते हैं। डिप्रेशन को ठीक कीजिए, और उसके बाद अगर प्राइमरी फटीग है तो फॉर्चुनेटली 2-3 दवाइयां उसमें निकली हुई हैं जो कि 1/3 को एक दवा सूट करती है, तो 1/3 को दूसरी दवा सूट करती है। तो मोडाफिनिल के नाम से एक दवा है, यार मोडाफिनिल, जो कि अलर्टनेस के लिए दिया जाता है। जो लोग काफी स्लीपी होते हैं उनको अलर्ट करने के लिए जाता है, वो इसमें भी काम करता है। पार्किंसन का एक दवा होती है एमेंटेडिन, वो काम करती है। लेकिन किसको कौन सी दवा सूट करेगी ये नहीं पता। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि एक दवा हमने लेकर देखी, नहीं सूट नहीं कर रहा है तो अब छोड़ दो, अब हम दवा नहीं लेंगे, दूसरी दवा ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यही इसीलिए इतनी तरह की दवाइयां आती हैं। तो फटीग उससे भी ठीक हो सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है साइकोलॉजिकल थिंकिंग। वो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव लाना जो है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अगर हम सोचते रहेंगे कि नहीं हमें तो ऐसी बीमारी है कि ये ठीक नहीं हो सकती, अब मैं ये नहीं कर पाऊँ, ये सब नेगेटिव बातें जब सोचते रहेंगे तो फिर फटीग जो है आपको और भी दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप अगर पॉजिटिव बातें सोचेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, फटीग जो है उससे ओवरकम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो बताएंगे, लेकिन लास्ट में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। और विपाशा जी ने कहा स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये किसी भी कंट्री में अभी, जैसे हम बोलते हैं ना कि एफडीए ने अप्रूव कर दिया, उस तरह के किसी भी कंट्री के रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया है इस ट्रीटमेंट को। अभी ये अभी भी समझते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशनल स्टेज में है। लेकिन खास मरीजों में यूरोपियन बॉडी ने भी और अमेरिकन सोसाइटी फॉर
ये हिमेटोलॉजी जो है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हिमेटोलॉजी, ये दोनों ने एक खास पेशेंट्स के लिए इसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर मींस एडवाइजेबल बोला है। वो किस तरह के पेशेंट्स हैं? वो पेशेंट्स हैं जिनको कि फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस होते हैं। फ्रीक्वेंट मींस एक हुआ और 1 साल भी नहीं पूरा हुआ कि दूसरा हो गया, तो दोनों ही टाइम जो है वो कुछ न कुछ छोड़ गया। जैसे यूजुअली एक रिलैप्स जो होता है वो रिकवर कर जाता है उससे आदमी, फर्स्ट रिलैप्स, सेकंड रिलैप्स। लेकिन इस कंडीशन में आपके पेशेंट में मान लीजिए दोनों रिलैप्स बड़े सीवियर थे, कुछ डेफिसिट छोड़ गए, और जब एमआरआई करते हैं तो उसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ लीजन्स बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तब भी जो दवाइयाँ हम नॉर्मली देते हैं वही ट्रीट देना चाहिए, चाहे वो आपको डाइमेथिल फ्यूमेरेट हो या टेरिफुलोनामाइड हो या इंटरफेरोन्स हो या ग्लैटिमर एसीटेट हो। ये जो यूजुअल दवाइयाँ हैं उसको पहले जरूर शुरू करना चाहिए। हो सकता है ये पेशेंट उन्हीं दवाइयों से कंट्रोल में आ जाए। जब एक दवा फेल कर जाती है तो डिफरेंस यही है कि पहले हम लोग कहते थे 2 दवा फेल कर जाए तब आप उसकी बात सोचो। अब यूरोपियन अमेरिकन दोनों बॉडी ने कहा कि एक दवा भी फेल कर जाती है और रैपिडली डेवलपिंग डिसेबिलिटी है या रैपिड रिलैप्सेस हो रहे हैं तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन वो करोगे तब भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 100% ये सक्सेस रेट है इसका सक्सेस रेट सभी दवाइयों से एलेम्टुजिमैब का तो काफ़ी अच्छा है, उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम है। एक स्टडी भी हो रही है कि एलेम्टुजिमैब जो है लेमट्राडा के नाम से जो आप लोग जानते हैं वो ट्रेड नेम है, वो उससे कंपेयर करके इसकी स्टडी चल रही है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की। 90% तक एफिकेसी है, लेकिन बहुत सिलेक्टेड पेशेंट्स को ही एडवाइस किया जा सकता है। और सिर्फ एक ही रिपोर्ट है जो बोल रहा है कि डिसेबिलिटी भी रिवर्स होती है, बाकी दूसरी रिपोर्ट है वो डिसेबिलिटी पे कमेंट नहीं करती है, बोलती नहीं डिसेबिलिटी रिवर्स होती है, ये क्लेम नहीं करती है। एक रिपोर्ट जो रिचर्ड बर्ट की है वो शिकागो से, वो दिल्ली आए हुए भी थे, हमारी बात हुई है, वो बड़े एंथुसियास्टिक हैं, काफ़ी 500 केसेस का उन्होंने पब्लिश भी किया है। तो अब ये जरूर है कि लोग इसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक मेन रीजन जो है वो है कि मोर्टेलिटी अब बहुत कम हो गई है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम थी उसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में वो थी मोर्टेलिटी की। अब आफ्टर ऑल एमएस के पेशेंट का आप यूएसए में लोगों ने स्टडी किया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, तो 76 ईयर्स है मीडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नॉर्मल लोगों की आप उसी एज में लेंगे तो अबाउट 77 ईयर्स है। बहुत ज़्यादा लाइफ को कर्टेल नहीं करता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लेकिन आप अगर ऐसा ट्रीटमेंट दे देंगे जिसमें कि मोर्टेलिटी का रिस्क है तो लाइफ खत्म। इसलिए लोग इसको जल्दी इसकी तरफ बढ़ते नहीं थे। और ये क्यों होता था? उसका मेन रीजन था कि शुरू में लोगों ने कहा कि हमें जब करना है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना है तो हम क्यों नहीं जैसे इस कैंसर पेशेंट में करते हैं वैसे ही करें। तो कैंसर पेशेंट्स में क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को सबको मारने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां देते हैं, जिसमें पहले तो होल बॉडी का इरेडिएशन करते थे। अब दवाइयां निकल गई तो वो बंद हो गया थोड़ा, लेकिन कहने का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग दवा दे करके सारे सेल्स को मारते थे। वही चीज यहाँ जब करते थे तो नेचुरली मोर्टेलिटी होगी। फिर लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं, इतना एमएस कोई कैंसर थोड़ी ना है, आप थोड़ा वो कम लेवल पे करो। तो लोगों ने कम लेवल पे ट्राई किया और अब तो इरेडिएशन देते ही नहीं है, अब सिर्फ 2 दवाइयां देते हैं, साइटोसिन एराबिनोसाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, उसी से सेल्स को मारने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो रेजिम देते थे उसको बोलते थे पूरा बोन मैरो मार देते हैं, माइलो एब्लेटिव बोलते हैं, एब्लेटिव मीन्स खत्म कर दो उसको। अब करते हैं लिम्फो एब्लेटिव, मतलब सारे बोन मैरो को मत मारो, सिर्फ लिम्फोसाइट्स जो हैं, जो सेल्स कल्प्रिट हैं, उन्हीं को आप खत्म करो। उससे क्या होता है कि मोर्टेलिटी 3% से अब हो गई है 0.3
0.3%। सो इसलिए एनकरेजमेंट लोगों को हुआ है कि अब हम इस यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोगों को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन वही है, जैसा कि हमने बताया कि तब भी 10% फेलियर रेट होगा, और अभी बहुत लंबा फॉलोअप किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट ऐसा है जो कम मरीजों में हुआ, उसके बाद अब धीरे धीरे बढ़ा है। बताया कि अभी लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने, रिचर्ड बट ने 500 पेशेंट का पब्लिश किया है रिजल्ट। उसके केस में मोर्टेलिटी नहीं थी, क्योंकि यही वो लिम्फोएबिलेटिव रेजिम यूज किया था। और वो फॉलो अप आएगा 2 साल, 4 साल, 5 साल, तब आप कॉन्फिडेंटली जानोगे कि कितना इसका सक्सेस रेट है। हो सकता है कि 90% से भी कम हो वो 7 साल के बाद, 5 साल के बाद। यह सब चीज़ें जो है जानते हुए उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर का फर्ज होता है सही चीज़ बताना कि ये आपके लिए ये सुटेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो अभी इतनी दवाइयाँ हैं, वो उस पर चलना चाहिए। अगर हैं तो फिर बहुत सावधानी से करके फिर उसके बाद आगे इसके बारे में आप जानते हैं कि इसमें 1 महीना कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। 1 महीना नहीं तो कम से कम 15-20 दिन तो जरूर रहना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी हाउ इट रिस्पॉन्ड्स। और उसके बाद फिर इसका कॉस्ट भी वन टाइम है, लेकिन इट इज़ क्वाइट सब्सटेंशियल, समवेयर फ्रॉम 12 to 15 lakhs लगता है।